Good morning, dear students. How are you? We are reading our monsoon book and doing presently chapter 5th. We have already made 2 videos on 5th unit on the river bank. That is the title of the chapter, the lesson. We have already made 2 videos in first part and second part. Today I am going to teach you the third part of this chapter. Third part means we have divided the chapter in 3 parts. First and second part we have already made, and today we shall study this chapter in third part. So let us begin. He crept through the undergrowth. Undergrowth means superior growth. In some beautiful garden you see superior growth, that is undergrowth. घास उबड़ खाबड़ जो है वहाँ पे आ जाता है, उसको हम undergrowth बोलते हैं. By the time he stretched out his hand, the fly had left the leaf where it had landed and gone to rest on the branch of Kemati tree. In a trice means in a moment, एक पल में. In a trice it left the tree and swooped down on a wild canna as if in silent prayer. He crept through the undergrowth. ऊनी जो वो छोटा लड़का है, वो जो घास उगी हुई थी वहाँ जंगल में उसके ऊपर से रेंग के गया, मतलब पेट के सहारे वो गया. He crept on the grass. He raised his body on the grass. By the time he stretched out his hand, जब तक उसने अपना हाथ फैलाया, he expanded his hands. The fly had left the leaf where it had landed and gone to rest on the branch of Kemati tree. उस समय तक वो जो फ्लाई थी, वो बटरफ्लाई थी, पत्ते से उड़कर वो दूसरे जगह जाके बैठ के दूसरे पेड़ की शाखा जो केमाती ट्री है उसकी शाखा पर बैठ गई. As soon as Uni tries to catch the fish, try to catch the dragonfly again flew to some another tree, to a branch of some tree there. In a moment, एक पल में ही it left the tree and swooped down on a wild canna as if in silent prayer. एक पल में ही ये उस पेड़ से उड़कर फिर दूसरे जो कैना का वहाँ पे पेड़ था वहाँ पे जाके बैठ गई, मानो ये वहाँ पे चुपचाप प्रार्थना करना चाहती हो, प्रार्थना करने के मूड में वहाँ पे जाके बैठी हो. इन another attempt as Uni made to catch that fish, to catch that dragonfly, it again flew from that Kemati tree to some other tree, that is a wild canna tree. It sat on a wild canna tree there which was swooping down, जो नीचे झुक गया था, and it sat there in a silent prayer as if it was doing some prayer on the branch of that tree. Cursing the waywardness of the dragonfly, Uni held his hand aloft, bit his lip and narrowed his eyes to see better. Cursing, रोंदते हुए, the waywardness, हटीलेपन को, ऑफ द ड्रैगनफ्लाई के हटीलेपन को रोंदने के लिए, रोंदते हुए ऊनी हैल्ड हिज हैंड अलोफ्ट, ऊनी ने अपना हाथ है वो ऊपर उठा लिया. बिट हिज लिप, और अपने होठों को वो काटने लगा, चबाने लगा, होठों को दांतों के नीचे दबाने लगा. एंड नैरोड हिज आइज टू सी बेटर, और उसने अपनी आँखें अच्छे से ढंग से देखने के लिए अपनी आँखों को भींचा, थोड़ा उनको टाइट किया. नैरोड हिज आइज टू सी बेटर. ऊनी insist upon catching that dragonfly. He was not ready to admit his defeat. As a result of it, he followed dragonfly after one branch that flew from one branch to another branch. Uni kept chasing the dragonfly, and he made another attempt. He lifted up his hand again. He bit his lips, and then again with carefulness
he tried to catch the fish, to catch that dragonfly, and again he missed. He was waiting for it to take up complete rest. अब उन्हीं ने देखा कि वो उसके काबू में नहीं आ रही है, तो उसने उसको निश्चय किया कि वो थोड़ा सा आराम देगा, थोड़ी वेट करेगा और वो पेशेंस रखते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अब वो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। बट द फ्लाई शोड अप, लेकिन वो फ्लाई अगेन जो ड्रैगन फ्लाई थी वो दोबारा हवा में उड़ी, ऊपर उठी, वेंट बैक टू रेस्ट ऑन द केमाती ट्री, और दोबारा फिर वो केमाती ट्री के ऊपर रेस्ट करने के लिए जा बैठी। उन्हीं थॉट दैट ही शुड ट्रीट the dragonfly with patience. He should let her to take some rest so that he can catch it easily. And he made another attempt, but again dragonfly flew into the air and went straight back to the केमाती tree where it had sat earlier. अभी वो उसके काबू में नहीं आ रही थी। Sunlight poured down in a wide circle through the branches of the jackfruit tree. सूर्य की रोशनी सीधे एक सर्कल बनाते हुए, चौड़ा विस्तृत सर्कल बनाते हुए, जैकफ्रूट जो पेड़ है शाखा, उसकी शाखाओं में से सर्कल बनाते हुए सूर्य की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। The sun rays were falling down through the branches of jackfruit tree in a wide circle, in a wide rays. In the light stood out the red fruit on top of ethel palm, stark and clear, and skeleton shape of the cactus and the bundles that hung from the केमाती tree. In the light stood out the red fruit on top of ethel palm. सूर्य की रोशनी में एंथल पाम जो ट्री था वहाँ पे, उसके ऊपर एक बड़ा सा लाल फल लगा हुआ था, स्टार्क, बिल्कुल जो प्योर फल था, प्योर एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था वहाँ से वो। द स्केल्टन शेप ऑफ द कैक्टस, और वहाँ सूर्य की रोशनी में ही कैक्टस की जो कंकाल शेप थी वो भी दिखाई दे रही थी। एंड द बंडल्स दैट हंग फ्रॉम द केमाती ट्री, और केमाती ट्री से लटकते हुए बंडल्स भी वहाँ से दिखाई दे रहे थे। सो इन दिस लाइन इट हैज़ बीन सेड दैट इन द लाइट एवरीथिंग वॉज क्लियर देयर, द टॉप ऑफ रेड fruit tree was clear from there, the cactus which was growing there in skeleton shape were also visible clearly, and the bundles that were hanging down from केमाती tree were also seen. Everything was visible there in the mid of jungle. There was a sudden movement from a hole at the root of the jackfruit tree. जैकफ्रूट ट्री की जड़ों में एक हॉल था, बिल था, और उसमें अचानक से हलचल हुई। There was some movement in the hole that was under the foot of jackfruit tree. The dried leaves at the foot of the tree seemed to move and murmur, and there were also scattering some dry leaves. And as Uni got forward, he heard some sound, murmuring sound, that was caused due to the dry leaves. तो उन्हीं जैसे आगे बढ़ा, वहाँ पे जो सूखे हुए पत्ते पड़े थे पेड़ के नीचे, उन पत्तों में से कोई हलचल हुई और फिर एक मर्मरिंग साउंड वहाँ पे हुई। ए किंग कोबरा पॉपुलरली नोन एज द 8 feet कोबरा केम आउट ऑफ द हॉल स्लोली। वहाँ पे कोबरा, किंग कोबरा, जिसको 8 फुट लंबा कोबरा बोलते हैं, जिसको ऐसा पॉपुलरली नोन, जो अच्छे से जानते हैं लोग कि 8 फुट का कोबरा होता है, वो कोबरा केम आउट ऑफ द हॉल स्लोली, उस बिल से बाहर आया धीरे धीरे। वाउंड इट सेल्फ राउंड एंड स्कैबी बार्क ऑफ द ट्री, जो स्कैबी बार्क था, स्कैबी जो जर्जर बिल्कुल खस्ता,
वहाँ पे स्किन थी, जो पेड़ की खाल थी, उसके जो बार्क था उसके चारों ओर वो लिपटा हुआ आया, उसके पेड़ की ट्रंक के, एंड ग्लाइडेड ओवर टू द अदर साइड, और वो दूसरी तरफ से उसके फिसल गया। एंड सडनली व्हाट हैपेंड देयर, फ्रॉम द होल दैट वाज अंडर द ट्री a king cobra came out of it, and it rounded itself, the bark trunk, rounded itself, the tree's bark. The dragonfly had rest on the Kemati tree next to the jackfruit tree. The dragonfly had taken rest on Kemati tree. जो ड्रैगन थी उसने केमाती ट्री पे जाके वो बैठ गई, वहाँ पे आराम करने लगी। नेक्स्ट टू द जैकफ्रूट ट्री, जो जैकफ्रूट ट्री के बिल्कुल आगे पेड़ था केमाती ट्री, वहाँ पे वो आराम करने लगी। ड्रैगन फ्लाई टुक रेस्ट ऑन केमाती ट्री विच वॉज नेक्स्ट टू जैकफ्रूट ट्री। Uni's tender hands were moving towards it, and Uni with his tender hands was moving towards the dragonfly which sat on that tree. जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई ड्रैगनफ्लाई थी उसकी और उसके ऊनी के जो टेंडर कोमल से हाथ थे वो भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एट दैट मोमेंट हिज बॉडी एंड शोल वॉज कंसनट्रेटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। उस पल उसी समय उसके शरीर के जो और उसकी शरीर और आत्मा पूरा का पूरा ध्यान लगाए हुए थे, वो कंसंट्रेटेड है, वो बिल्कुल उस ब्रांच के ऊपर कंसंट्रेटेड था पेड़ के, वो सांप की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं था। एट दैट मोमेंट Uni was so concentrated with his soul and body that nothing was visible to him, nothing was there in his mind except then that dragonfly. In the entire universe he was aware only of the red tail of that dragonfly. पूरी दुनिया में वो केवल उस ड्रैगनफ्लाई की टेल के बारे में ही जानता था, वही उसको सूझ रही थी और वो उसी में खोया हुआ था। Nothing came to his mind except then that dragonfly. Sunlight fell on his hand like molten silver. उसके हाथों के ऊपर सूरज की रोशनी गिरी जैसे वो पिघले हुई चांदी थी, पिघली हुई चांदी की तरह उसके हाथों पर सूरज की रोशनी गिर रही थी। When the red precious stone sat in the ring gleamed, two small eyes looking like red crystal buttons glistened from behind the fruit on the top of palm. The snake was inhaling the aroma of the fruit. Sunlight fell on his hand. उसके हाथों पर जो रोशनी गिर रही थी। When the red precious stone sat in the ring gleamed, जब एक लाल सा मोती है उसकी हाथ में जो उसने अंगूठी डाल रखी थी वो चमक रहा था। Two small eyes looking like red crystal buttons glistened from behind the fruit on top of the palm. When the red precious stone sat in the ring gleamed, जब लाल सा वो कीमती पत्थर था उसकी अंगूठी के अंदर वो चमक रहा था। Two small eyes looking like red crystal buttons, दो छोटी छोटी आँखें उसके मोतियों के जैसे बटन होते हैं उनकी तरह है। Glistened from behind the fruit on the top of the palm, जो पाम के पेड़ की चोटी पर जो फल की तरह वो चमक रहा था। द स्नेक वॉज इनहेलिंग द अरोमा ऑफ द फ्रूट, और जो सांप है उस फल के अरोमा को वो निगल रहा था। ही वॉज सैवलोइंग द अरोमा ऑफ द फ्रूट। द कलर ऑफ द स्टोन ऑन द रिंग अट्रैक्टेड द रेप्टाइल. इट लिफ्टेड अप इट्स हेड एंड विद आइज अलाइट. It drew air into the body. Its entire frame swelled out as it spread its hood. The color of the stone on the ring, attracted the reptile. जो कीमती पत्थर था अंगूठी में जो जड़ा हुआ था उसने उस सांप को, उस रेप्टाइल को, घास के सांप को रेप्टाइल बोलते हैं। रेप्टाइल इज ए स्नेक, इज ए काइंड ऑफ grass snake.
अंगूठी के जो रंग था, पत्थर जो कीमती पत्थर उसके अंदर जड़ा हुआ था, उसने उस सांप को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इट लिफ्टेड अप इट्स हेड एंड विद आइज एट लाइट, इसने अपने हुड को, इट रेज्ड इट्स हुड हाई इनटू द एयर एंड अलाइट एंड इट्स शाइनिंग आइज, और इसकी चमकती हुई आंखों को ऊपर किया। इट ड्रू एयर इनटू इट्स बॉडी, सांप ने हवा को अपने अंदर खींचा। इट्स एंटायर फ्रेम स्वेल्ड आउट एज ए इट स्प्रेड इट्स हुड, जैसे इसने अपने फन को फैलाया, एज इट स्प्रेड इट्स हुड, इसके एंटायर बॉडी इट ऑल्सो स्वेल्ड, इट ऑल्सो लुक्ड स्वेल, ये भी जैसे फूल सी गई थी पूरी बॉडी इसकी। द ड्रैगन फ्लाई हैड नॉट लेफ्ट इट्स रेस्टिंग प्लेस, ड्रैगन फ्लाई वॉज स्टिल सिटिंग ऑन इट्स रेस्टिंग प्लेस, इट वॉज नॉट रेडी टू मूव फ्रॉम देयर। ड्रैगन फ्लाई अपने रेस्टिंग प्लेस पर, अपनी जगह पर वो बैठी हुई थी और वहाँ से हिलने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऊनीज आर्म लॉर्ड इटसेल्फ, ऊनी ने अपनी भुजाओं को नीचे की ओर कर दिया। ही डाउनवर्ड हिज आर्म्स एंड मूव्ड फॉरवर्ड विद मेजर्ड एक्यूरेसी, एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड, और वो आगे की ओर बढ़ा बिल्कुल बड़ी सावधानी से, कॉशियसली। ऑल ऑफ ए सडन द फ्लाई स्टेड एंड फ्लैप्ड इट विंग्स, सडनली द फ्लाई सडनली स्टेड, वहाँ से फिर उस मक्खी के अंदर हलचल हुई, ड्रैगन फ्लाई में हलचल हुई, और ये फिर वहाँ से चल पड़ी। इट रोज स्लोली, ये धीरे से उठी। सर्कल राउंड द स्पॉट 2 or 3 times एंड अगेन सेटल्ड डाउन देयर, 2-3 बार हवा में वहीं चक्कर लगाया, फिर अचानक से उसी जगह पर आकर ये बैठ गई जहाँ पे पहले बैठी हुई थी। इट took 2 or 3 rounds in the air and then again sat on the same place as it had sat earlier, where it had sat earlier. It looked as if it was reluctant to leave that enchanted spot warmed by the noonday sun. ऐसा लग रहा था मानो उस जगह को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि ये उस जगह को छोड़े, अनिच्छा हो रही थी उसकी, रिलक्टेंट। इंचेंटेड स्पॉट, और वो उसको इंचेंटेड स्पॉट लग रहा था, बड़ा ही लुभावना उस जगह उसको लग रही थी। एंड एज रिजल्ट ऑफ इट वॉज नॉट रेडी टू लीव दैट प्लेस, इट सेट देयर कंटिन्यूसली। द किंग कोबरा हेल्ड इट सेल्फ स्टिल, स्टारिंग एट द रेड स्टोन ऑन द रिंग। किंग कोबरा अभी भी अपना वो फन फ्लाई हुए वहाँ पर ऐसे ही स्टिल, बिल्कुल चुपचाप शांत था। स्टारिंग एट द रेड स्टोन ऑन द रिंग, और वो रिंग में जो स्टोन जड़ा हुआ था, उस बच्चे की जो अंगूठी डाल रखी थी, उस अंगूठी में जो कीमती वो पत्थर जड़ा हुआ था, उसकी ओर वो अभी भी घूर रहा था, गेजिंग, टकटकी लगाकर उसकी ओर देख रहा था। एंड द किंग कोबरा रेजिंग इट्स हुड वॉज लुकिंग at the stone that was in the ring of the child's boy, in the boy's ring. The tender fingers shaped into a tongue were frozen in mid-air. जो उसकी कोमल कोमल सी अंगुलियां थी, shaped into a tongue, वो एक चिमटी के रूप में, एक चिमटी के आकार में एक जगह पे बनी हुई थी, हवा के बीच में। मान लीजिए उसकी हैंड में ऐसे उसने हाथ को अपने बना रखा था, और यहाँ से वो इन उंगलियों से उसको पकड़ना चाहता था। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई को इस जगह पे वो पकड़ना चाहता था। ऐसे उसने अपने टोंग शेप में, अपने इन द मिड ऑफ एयर, हवा के बीच में उसने वो अपनी उंगली ऐसे बना रखी थी, हैंड को शेप दे रखी थी। ऊनीज फिंगर मूव्ड विद ए सेट पर्पस, ऊनी की उंगलियां हैं वहाँ पे हिली इस पर्पस से। मूव्ड विद ए सेट पर्पस, एक सेट पर्पस से वहाँ पे हलचल में थी वो। दिस टाइम दे डिड नॉट मूव, अब की बार वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क बिकॉज द ड्रैगन फ्लाई हैड flown away, had escaped from his catch many times earlier. He altered his strategy and his hand was making a slow circular sweep towards the right in the direction of the cobra's mouth. Uni's finger moved with a set purpose. This time they did not move. इस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी उसकी उंगली। He altered his strategy,
ही चेंज्ड हिज प्लान, उसने अपनी योजना को बदल दिया. एंड हिज हैंड वॉज मेकिंग ए स्लो सर्कल स्वेप टुवर्ड द रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द किंग कोबरा. और उसका एंड हिज हैंड वॉज मेकिंग ए स्लो सर्कल स्वीप टुवर्ड्स द राइट, और उसके जो हाथ हैं वो दाईं ओर, जिस जगह पे किंग कोबरा था उसके मुंह की ओर वो हाथ उसका जा रहा था. द स्नेक टर्न्ड इट्स सूड वेरी स्लोली टुवर्ड्स द स्पार्कल ऑफ द स्टोन, और स्नेक ने धीरे से अपना वो हुड है वो हवा में हिलाया. स्पार्कल ऑफ द स्टोन, उस पत्थर की चमक को देखकर उसकी ओर अपना उसने हुड किया. ही मूव्ड हिज हेड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट स्टोन, फ्लोइंग द मोमेंट ऑफ ऑन हिज आर्म. और साथ में वो जैसे ही उन्हें अपनी बाजू को हिलाता था, इसी मोशन में, इसी डायरेक्शन में वो स्नेक अपना हुड है उसको मोमेंट दे रहा था. ही वॉज मूविंग हिज हेड in the same moment as Uni was moving his arms. As the glistening red stone inched forward, the cobra moved his sword backward. जैसे ही उसकी अंगूठी लगा हुआ वो हाथ चमकता हुआ आगे की ओर थोड़ा सा होता, तो कोबरा का हाथ भी 1 इंच भर के लिए पीछे की ओर हट जाता था. रेडी टू स्ट्राइक, एंड ही वॉज रेडी देयर टू अटैक. The dragonfly was steeped in the languor of the sunlight. और ड्रैगनफ्लाई बिल्कुल झुकी हुई थी शिथिलता से उस लाइट की ओर. इन लैंग्योर, स्टिप्ड इन द लैंग्योर ऑफ द सनलाइट, उस सूरज की रोशनी में बिल्कुल शिथिल अवस्था में वो झुकी हुई थी उस ब्रांच के ऊपर. द फिंगर रीच्ड विद इन द हेयर्स ब्रेथ ऑफ द ड्रैगनफ्लाई. द फिंगर रीच्ड, उसकी ऊनी की जो उंगलियां हैं, ऊनी की उंगलियां थोड़े से और आगे बढ़ी. द फिंगर्स रिच्ड विद इन द हेयर्स ब्रेथ. विद इन ए हेयर्स ब्रेथ मीन्स वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक जो उनकी आंखें ड्रैगन फ्लाई की गई. देर वॉज ए मोमेंट ऑफ अटर स्टिलनेस एंड देर वॉज कंप्लीट साइलेंस एट दैट टाइम. वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी. द फिंगर्स केम टुगेदर लाइक द क्लोजिंग ऑफ ए आईलेड. और उसकी जो फिंगर्स हैं, मान लीजिए आँखों के जैसे बंद करने की तरह उसकी उंगलियां बंद होने के लिए उनका अब वो कोशिश कर रहा था. द टेल ऑफ द ड्रैगन फ्लाई लुकिंग लाइक ए ड्राइड पाम फॉन्ट केम बिटवीन द फिंगर्स विद ए रस्टल. और जो ड्रैगन फ्लाई की जो टेल थी, पूंछ थी, लुकिंग लाइक ए ड्राइड पाम फ्रॉन्ट, मान लीजिए वो एक पत्ता होता है सूखे पत्ते की तरह, उसकी उंगलियों के बीच में आई. केम बिटवीन द फिंगर्स विद ए रस्टल, एक आवाज़ के साथ आई. द ड्रैगन फ्लाई क्लैप्ड इट्स विंग्स इन डिस्प्रेशन एज उन गेव ए शॉट. जैसे उन्हें चिल्लाया, शॉट किया उसने, तो ड्रैगन फ्लाई एट दैट मोमेंट क्लैप्ड इट्स विंग अगेन एंड इन डेस्परेशन एंड फ्लू अवे, डिसपियर्ड लाइक लाइटनिंग. और ये बिजली की गति की तरह से वहाँ से गायब हो गई. इट वॉज ऑल ओवर अगेन. अब फिर दोबारा सब कुछ खत्म हो गया होने के लिए वो उसकी कोशिशें. इट वॉज ऑल ओवर इन ए ब्रीफ इंस्टेंट, इन ए ब्रीफ मोमेंट, सब कुछ वो तुरंत खत्म हो गया. द किंग कोबरा वॉज डेज्ड एंड इट टर्न्ड राउंड इट सेल्फ एज इफ इट वॉज ए रबर स्नेक. किंग कोबरा वॉज डेज, वो हैरान था. टर्न्ड राउंड इट सेल्फ एंड इन सरप्राइज इन हिज as he was dazed, he moved his head again like a rubber snake. ऐसा जैसे रबर का स्नेक होता है उसकी तरह उसने अपने बॉडी को फिर दोबारा से मोड़ा. वो फिर हैरान सा हुआ, सा वहाँ से लौट चला. टोटली फूल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, अगेन ही फेल्ट दैट ही वॉज टोटली फूल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, वो फ्रस्ट्रेशन में था. इट्स हुड स्ट्रेंक, एंड अगेन उसका जो हुड था वो सिकुड़ चुका था, स्ट्रेंक. एंड इट स्लिदर डाउन द ट्री विद इट्स टंग jutting out, and again it slithered down, or it came down from the tree branches, and its tongue was jutting down. उसकी जो जीभ है वो बाहर की ओर निकल रही थी जब वो पेड़ से नीचे आया.
It smelled the bundle in the kamathi tree in disgust, और अगेन बड़ी डिस्कस्ट, बड़े परेशान सा हुआ डिस्पेयर में. इट स्मेल्ट अगेन द बंडल इन द केमाती ट्री में जो बंडल्स थे, फल के बने हुए बंडल्स थे, उनको इसने फिर सूंघा निराशा के साथ. गिल्ड इट टू द ग्राउंड, और वो फिसल कर जमीन पर आ गिरा. एंड फेल डाउन द अर्थ. Crept over the leprous looking root of the tree, and again वो जो पेड़ के बल, पेड़ की जो जड़ें थी, लिपोरियस मतलब कोड लगी हुई सी, ऐसी लग रही थी जैसे कोड लगा हुआ, ऐसे दाने से बने हुए थे उस पर, पेड़ की जड़ों पर. तो वो उनके ऊपर से रेंगता हुआ पास्ड बाय द कैक्टस के पास से गुजरा. एंड पास्ड बाय द कैक्टस एंड डिसपियर्ड समवेयर बिटवीन द स्टेम्स ऑफ द वाइल्ड कैनस. और वहाँ पे वाइल्ड कैनस थे, फ्रेस्ट कैनस थे, तो उनके अंदर वो फिर दोबारा से स्टेम के अंदर वहाँ गायब हो गया, डिसपियर हो गया, इनविजिबल हो गया. एंड ही बिकेम अगेन इनविजिबल इन द स्टेम्स ऑफ द वाइल्ड कैनस देयर. I think you have understood this chapter, my dear students. If still you have any problem, please write to me through WhatsApp, or you can call me either. Thank you and have a good day. May Goddess Saraswati bless you.